Hello guys, in the 11th class we have studied microeconomics, which means a small part of economy, like the law of demand, law of supply, elasticity of demand. We had already discussed in class 11, but in our 12th class there is macroeconomics. So first of all we have to know that what is macroeconomics. The word macro derived from a Greek word macros, makros, means which means large. So the large part of economy, the whole economy is known as macroeconomy. So in the macroeconomic study, we will discuss about poverty, unemployment, national income, gross domestic product, और which is known as GDP. ये सब के बारे में हमें पढ़ना है. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक होल इकोनॉमी है, जो पूरा इकोनॉमी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स पढ़ेंगे. जो कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमी कंडीशन है हम वो बारे में पढ़ेंगे. And in our macroeconomy, our first chapter, which is chapter 1, circular flow of income. How income will be circulated among the economy, that things we have to discuss. First of all, we have to know the definition that what is circular flow of income. So it refers to the cycle of generation of income and its distribution among the factors of production. We know that what are the factors of production, such as land, labor, capital, and entrepreneurship. And finally, its circulation from household to farms in the form of consumption expenditure. So पहले हम ये बारे में जानते हैं कि हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है. पहले से पढ़े हम. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स आवर land, labor, capital, and entrepreneur, and which included the factor of payment, or we can say factor of income. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमेशा फैक्टर ऑफ इनकम और फैक्टर ऑफ पेमेंट से लिंक्ड अप है. किससे? जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारा आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सिमिलरली फैक्टर ऑफ पेमेंट में हमारा आएगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. जैसे कि लैंड रिलेट्स टू रेंट. हाउ? बिकॉज रेंट इज बीइंग पेड फॉर द लैंड. लैंड को लेके ही हमें रेंट मिलता है. सिमिलरली लेबर रिलेट्स टू वेजेस, मीन्स वेजेस पेड टू द लेबर फॉर हिज वर्क. लेबर एक आया हमारा क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक पार्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का. और लेबर के लिए जो वेजेस है वो हमारा आया फैक्टर ऑफ पेमेंट में, यानी कि फैक्टर ऑफ इनकम में. रेंट प्रोवाइड हुआ लैंड के लिए, वेजेस प्रोवाइड हुआ लेबर के लिए. सिमिलरली द थर्ड वन इज कैपिटल. कैपिटल लिंक्ड अप विथ इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट इज बीइंग पेड फॉर द कैपिटल. जैसे कि हम जानते हैं आवर फिक्स डिपॉजिट अमाउंट इज ऑल्सो आवर कैपिटल. सो बैंक में अगर हम कुछ अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, फॉर दैट रीजन वी आर गेटिंग सम इंटरेस्ट. सो interest paid for the capital only. Similarly, the last one is entrepreneurship, or you can say farm, or you can say producer, or you can say organization, which is linked up with profit. Means what is profit? Profit is a reward goes to the entrepreneur. So ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या प्रोड्यूसर के लिए या फार्म के लिए हमेशा प्रॉफिट ही होता है. वो हमेशा प्रॉफिट ही चाहते हैं. सो दिस all four factors of production linked up with four factor of payment. This process is known as circular flow of income. Here it is clearly mentioned that it refers to the cycle of generation of income and its distribution among the factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneurship, and finally its circulation from household to farms in the form of consumption expenditure. कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो मेंशन हुआ है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है जो फैक्टर ऑफ पेमेंट, फार्म ने जो भी फैक्टर ऑफ पेमेंट या फैक्टर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साइड में, या जिसको हम हाउस होल्ड बोलते हैं, जो ओनर होते हैं, तो हाउस होल्ड को जो पैसा देते हैं उसके लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर में काम होता है. बिकॉज इट इज यूज फॉर द फैक्टर्स ऑफ पेमेंट यूज फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड. So this is all about your circular flow of income. I will discuss it later, the whole process, how it works with a cycle. For that reason, it is known as circular flow of income. And the next one is it has divided into
three phases, that is production phase, expenditure phase and income phase. First of all, production phase is there. Production phase means आउटपुट. तो होल आउटपुट हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन फेज में आता है. एक्सपेंडिचर मीन्स जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है. प्रोडक्शन खर्चा हो रहा है. हम अगर परचेज करेंगे कोई भी प्रोडक्शन को, कोई भी आउटपुट को, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, पैसा देना पड़ेगा. तो इकोनॉमी पे क्या हुआ, पैसा जनरेट हुआ, मनी जनरेट हुआ, मनी फ्लो हुआ. तो फाइनली नेक्स्ट वन इज इनकम मेथड, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है और किसी के लिए वो इनकम है. जैसे कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर रहा है मतलब लोगों का इनकम जनरेट हो रहा है, ज्यादा इनकम हो रहा है. तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन फेज मीन्स आउटपुट, जो इकोनॉमी पे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन जनरेट हो रहा है. एंड द सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर फेज, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है. एंड द थर्ड वन इज इनकम फेज, इकोनॉमी पे इनकम जनरेट हो रहा है, जो कि इनकम फेज में आएगा. ये तीनों पेजेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का. द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. कितने टाइप का सर्कुलर फ्लो होता है, दो टाइप का बेसिकली होता है. एक होता है हमारा रियल फ्लो, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो, और सेकंड में हम जानेंगे कि मनी फ्लो, जिसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं. सो द फर्स्ट वन इज रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो. किसको बोलते हैं, इट रेफर्स टू the flow of factor of services from household to farms and the corresponding flow of goods and services from farms to household. Here there is no involvement of any money. रियल फ्लो क्या होता है, जो ऐसा फ्लो है जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. हियर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. प्रोसेस से में जैसे कि हम पहले बात किए थे, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर प्रोडक्शन का ओनर है हाउस होल्ड. और फैक्टर ऑफ पेमेंट, पेमेंट का ओनर है हमारा फार्म. फैक्टर ऑफ पेमेंट का ओनर है फार्म. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाउस होल्ड है फार्म को अपना सर्विस दे रहा है. यहाँ पे इट हैज क्लियरली मेंशन्ड ओवर हियर. जैसे कि हम देखेंगे हाउस होल्ड जो होता है वो फार्म को अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, और हम उसको फैक्टर्स ऑफ सर्विस भी बोलते हैं. वो सर्विस पेड कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं या फैक्टर ऑफ सर्विस भी बोलते हैं. जिसमें हमारा आ गया क्या, लैंड होगा, इसमें लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये चारों जो होता है सर्विस प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड, जिसका ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सर्विस का हाउस होल्ड होता है. और इसके बदले फार्म क्या देगा, फार्म पैसा यहाँ पे नहीं देता है. रियल फ्लो में या फिजिकल फ्लो में हियर इट हैज क्लियरली मेंशन दैट हियर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. यहाँ पे मनी का कुछ ट्रांजैक्शन नहीं होता है. हाउस होल्ड जो अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है या अपना जो फैक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले फार्म क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पैसा नहीं देता. ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, फार्म कुछ भी काइंड का हो सकता है, फार्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. आई एम रिपीटिंग अगेन. रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो क्या होता है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड. हियर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी. बहुत सिंपल प्रोसेस है. जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर हाउस होल्ड है, वो फार्म को अपना फैक्टर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले फार्म कुछ पैसा नहीं देता है, कुछ पेमेंट नहीं करता है. इसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होता है. फॉर दैट रीजन, इसीलिए तो हम यहाँ पे मेंशन किए, हियर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी. मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. फार्म उसके बदले, ये सर्विस के बदले हाउस होल्ड को अपना गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो प्रोवाइड करता है. ये था हमारा रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो. नेक्स्ट हम देखेंगे मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो. दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है, रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे हम मनी फ्लो में, या जिसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है. कैसे, यहाँ पे मेंशन हुआ, यू मे नोट इट डाउन द डेफिनेशन ऑल्सो. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ factor payments from firms to household for their factors of services and the corresponding flow of money from household to farms in the form of
consumption expenditure on the purchase of goods and services produced by the farms. यहाँ पे हाउस होल्ड जो होते हैं वो फार्म को अपना फैक्टर ऑफ सर्विस जैसे प्रोवाइड करते थे रियल फ्लो में, उससे ही यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हाउस होल्ड के पास और कुछ इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है, तो वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या फैक्टर ऑफ सर्विस को फार्म को प्रोवाइड करें। पर इसके बदले क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज तो दे सकता है, पर यहाँ पे फार्म क्या करेगा, हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करेगा। मीन्स जो हम जानते हैं यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि फैक्टर ऑफ पेमेंट बोलने से हम बोलेंगे कि जहाँ पे हमारा आता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारा पेमेंट साइड है। देखो जैसे कि रेंट हम बोलते हैं, रेंट क्या होता है, डायरेक्ट रिलेट्स टू मनी, एक पेमेंट ही होता है। लैंड एक फैक्टर होता है, लेबर एक फैक्टर होता है, कैपिटल एक फैक्टर होता है, और एंटरप्रेन्योर भी एक फैक्टर होता है। पर देखेंगे जो हम फैक्टर ऑफ पेमेंट साइड देखेंगे, जो हम फैक्टर ऑफ इनकम बोलते हैं, यहाँ पे जनरली क्या होगा, रेंट देखेंगे तो रेंट डायरेक्टली मनी से इन्वॉल्व है, वेजेस भी डायरेक्टली मनी से इन्वॉल्व है। वेजेस मीन्स हम किसी को वेजेस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, रेंट मीन्स किसको पैसा दे रहे हैं। इंटरेस्ट भी एक वन टाइप ऑफ मनी है, इंटरेस्ट भी हम किसी को इंटरेस्ट पेड करें, वो इंटरेस्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। सिमिलरली प्रॉफिट, ये भी डायरेक्टली मनी से लिंक्ड अप है। प्रॉफिट जो कि एंटरप्रेन्योर को मिलता है, फार्म को मिलता है, एक प्रोड्यूसर को मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। सो ये सारा पेमेंट साइड है। यहाँ पे रियल फ्लो में जो मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मनी फ्लो में या नॉमिनल फ्लो हम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे हाउस होल्ड फार्म को अपना फैक्टर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, फैक्टर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें थ्रू लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और फार्म हाउस होल्ड को क्या देते हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट या इनकम देते हैं, जिसको हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बोलते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। This is the types of flow which we have already discussed, physical and nominal, or you can say real or money, real flow or money flow. Our next part is circular flow in different economy. हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो जो होता है इकोनॉमी पे कैसे ये फंक्शन कर रहा है। सर्कुलर फ्लो जो होता है वो इकोनॉमी पे कैसे ऑपरेट हो रहा है, इकोनॉमी पे किसे चल रहा है, जिसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। इसीलिए सर्कुलर दो पार्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इन सिंपल इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड और फार्म ही आएगा। एंड नंबर 2 में हम देखेंगे इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा सर्कुलर फ्लो कैसे ऑपरेट होगा, और जो 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है यहाँ पे हमारा सर्कुलर फ्लो कैसे ऑपरेट होगा, ये दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो इन सिंपल इकोनॉमी जो 2 सेक्टर इकोनॉमी पर हम देखेंगे, यहाँ पे हाउस होल्ड और फार्म दोनों चीज बोला गया है। पहले जानते हैं, मैं जो बोला था कि बाद में बोलूंगा कि इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों बोलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी मीन्स यहाँ पे होता क्या है, जो वही बात हाउस होल्ड जो होता है और एक फार्म होता है, क्लियर। सो हाउस होल्ड क्या करता है, फार्म को अपना फैक्टर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या एंटरप्रेन्योर हो, ये सारा चीज फार्म को प्रोवाइड करता है। फार्म को अगर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो फार्म तो उसके बदले पेमेंट करेगा। आजकल कोई भी किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इफ एनीवन इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू अस, ही विल गेट मनी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, उसको पैसा भी मिलेगा। जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है उनको पैसा भी मिलेगा, उनको खर्चा करने के लिए पैसा भी चाहिए होता है। सिमिलरली हाउस होल्ड जो फैक्टर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बदले फार्म क्या करता है, उनको फैक्टर ऑफ पेमेंट और इनकम प्रोवाइड करता है, जो हम पहले डिस्कशन किए हैं, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होता है, हाउस होल्ड फार्म को प्रोवाइड कर रहा है और फार्म क्या कर रहा है, हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहा है। एक जो प्रोसेस एक साइकिल हिसाब से चलता है, हाउस होल्ड फार्म को सर्विस प्रोवाइड किया, फिर फार्म क्या किया, हाउस होल्ड को पेमेंट प्रोवाइड किया, फिर पेमेंट क्यों प्रोवाइड किया, पेमेंट प्रोवाइड किया मीन्स हाउस होल्ड के लिए कौन सा काम पे लगेगा, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट विल यूजेस फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो
कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए ये यूज होगा। हाउस होल्ड को जो पैसा मिला वो क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, मींस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। कहीं से कंज्यूम करेगा मतलब कहां से करेगा, जो फार्म गुड्स एंड सर्विसेज को बनवाता है, फार्म जो गुड्स एंड सर्विसेज को या कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनवाता है उससे ही ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर में यूज करेगा। यानी कि मार्केट से या कोई भी दुकान से जाके चीज को खरीदेगा, वो भी तो कोई कंपनी में बन रहा है ना। यानी कि पैसा इनडायरेक्टली किसके पास गया, एक फार्म के पास गया। फिर फार्म के पास जो गया ये तो एक सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है, पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दिया फार्म से और सामान ले आया। फिर फार्म इनडायरेक्टली थ्रू से अगर देखेंगे तो फिर फार्म क्या किया, फार्म उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर में यूज किए। एक साइड पे अगर देखेंगे तो हम हाउस होल्ड फार्म को फैक्टर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया, फार्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ पेमेंट या फैक्टर ऑफ इनकम प्रोवाइड किया। और ये जो इनकम मिला हाउस होल्ड को, ये क्या करेंगे, ये इनकम को कोई काम पे लगाएंगे, यानी कि बेसिकली कंजप्शन एक्सपेंडिचर में यूज करेंगे। जो पैसा आया कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे यूज करेंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। जो पैसा फार्म के पास आएगा, फिर वो पैसा से फार्म क्या करेगा और भी प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वो हाउस होल्ड के पास आएगा। तो दिस प्रोसेस वर्क्स लुक लाइक ए सर्कल, सो फॉर दैट रीजन इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो ये हमारा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट इकोनॉमी में, जो कि फर्स्ट पार्ट था हमारा इन सिंपल इकोनॉमी, जिसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं, जहां पे हाउस होल्ड होता है और फार्म होता है। ये दोनों के बीच जो इकोनॉमी ऑपरेट होता है ये टू सेक्टर इकोनॉमी होता है, जहां पे एक हाउस होल्ड होता है और एक फार्म होता है। एंड सेकेंड में हम देखेंगे इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे हाउस होल्ड तो रहेगा और फार्म भी रहेगा, उसके साथ और एक चीज यहाँ पे लिंक्ड अप हो जाएगा, वो है गवर्नमेंट। थ्री सेक्टर इकोनॉमी पे हाउस होल्ड फार्म के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन किए। टू सेक्टर इकोनॉमी पे कि जो हमारा हाउस होल्ड है और फार्म है उनके बीच कैसे सर्कुलर फ्लो चल रहा है, कैसे इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रहा है, किससे मनी फ्लो होता है, मनी सर्कुलेट होता है दोनों के बीच, हाउस होल्ड और फार्म के बीच, जो कि हम टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ेंगे। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में वो दो पार्ट तो है, यानी कि हमारा हाउस होल्ड भी है और फार्म भी है। पर यहां पे क्या होता है, हाउस होल्ड जैसे फार्म के साथ मनी सर्कुलेट कर रहा है, इनकम यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, वो प्रोसेस तो चलेगा। पर इसमें और एक चीज आ जाता है जो कि गवर्नमेंट होता है। इसमें क्या होगा, अगर हम गवर्नमेंट को हाउस होल्ड के साथ लिंक्ड अप करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड के साथ कैसे लिंक्ड अप है पहले हम जानते ही हैं। गवर्नमेंट क्या करता है, फैक्टर ऑफ इन जो पेमेंट होता है, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को अपना फैक्टर ऑफ पेमेंट और इनकम प्रोवाइड करते हैं। हम जानते हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या होता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड करना उनका काम है, तो जो हाउस होल्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या करता है उसके बदले उनको फैक्टर ऑफ पेमेंट या इनकम प्रोवाइड करता है, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड को। सिमिलरली जिसको हम बोलते हैं, ये चीज याद रखना, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम, गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। सिमिलरली और भी एक चीज प्रोवाइड करता है, मैं बताऊंगा बाद में एग्जांपल देके कि फैक्टर ऑफ पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या है। गवर्नमेंट और भी एक चीज प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम ये क्या होता है, ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड को। ट्रांसफर पेमेंट मतलब, जो सिंपल वर्ड में मैं बोल देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक फैक्टर पेमेंट और एक जो फैक्टर इनकम होता है, और एक है हमारा ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम। यानी कि हम कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसके बदले अगर हमें पैसा मिला वो फैक्टर ऑफ पेमेंट होता है। याद रखना, सिंपल लैंग्वेज में हम कुछ काम कर रहे हैं और जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले अगर हमें कुछ पैसा मिला, इनकम हमारा जनरेट हुआ, वो है फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। If we are working in any company, any government organization or any private organization, or for our labor, for our work, if we are getting some salary or getting some wages
और गेटिंग सम मनी, दिस इज नोन एज फैक्टर ऑफ पेमेंट और फैक्टर ऑफ इनकम, ये होता है। ट्रांसफर इनकम, उसमें क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं, पर हमें इससे ही पैसा मिलता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम होता है उनके लोग कुछ काम नहीं होता है, तब गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है। कुछ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए वो भी गवर्नमेंट का ट्रांसफर ऑफ इनकम या ट्रांसफर पेमेंट पे चला जाएगा। और भी ऐसे बहुत कुछ चीजें जो बिना काम के मिल जाता है, वो भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ इनकम में आ जाता है। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड किया यहाँ पे, फैक्टर ऑफ पेमेंट और फैक्टर ऑफ इनकम प्रोवाइड किया हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने क्या किया, गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट दोनों चीज प्रोवाइड किया, यहाँ पे फैक्टर ऑफ इनकम भी प्रोवाइड किया और फैक्टर ऑफ पेमेंट भी प्रोवाइड किया। फैक्टर ऑफ पेमेंट फैक्टर ऑफ इनकम और ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर इनकम, ये गवर्नमेंट हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया। और उसके बदले हाउस होल्ड क्या देगा गवर्नमेंट को, दोनों प्रोसेस तो चलेगा ना, इसलिए तो सर्कुलर फ्लो होगा। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को ये दोनों चीज प्रोवाइड किया, हाउस होल्ड को तो फिर कुछ देना चाहिए, सर्विस तो देता है, ये ऑब्वियस बात है, बिकॉज हाउस होल्ड प्रोवाइड्स, क्योंकि ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो सर्विस तो प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को। उसके साथ भी हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करता है, जो इनकम टैक्स होता है गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वो टैक्स का बेनिफिट है। हाउस होल्ड का इनकम अगर ज्यादा हुआ, ये पैसा गवर्नमेंट से आता है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, कहीं से भी हो, वो पैसा आता है, और ये पैसा अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड यूज करते हैं। जिसका मनी इनकम ज्यादा होता है वो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करता है। वो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच ये लिंक्ड अप है, जो 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट के साथ अगर हम फार्म को देखेंगे तो यहां पे क्या होता है, सिमिलरली गवर्नमेंट भी क्या करता है, फार्म को पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, किसे, फार्म या कोई कंपनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनवाता है, प्रोड्यूस करता है, वो इकोनॉमी पे जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, फार्म को पेमेंट प्रोवाइड करता है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स जो प्रोड्यूस करता है फार्म या कोई भी कंपनी, उसके बदले गवर्नमेंट ने पेमेंट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कंपनी को पेमेंट करता है, यानी कि इनडायरेक्टली वो पेड होता है, इनडायरेक्टली वो पैसा मिलता है, अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज बनवाता है उसके लिए मिल जाता है फार्म को। सिमिलरली फार्म के साथ गवर्नमेंट का क्या लिंक्ड अप है, यहाँ पे हम देखते हैं एक साइड पे गवर्नमेंट ने फार्म को पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दिया, और फार्म ने क्या करेगा गवर्नमेंट को, फार्म गवर्नमेंट को अपना टैक्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि इंडिविजुअल या हाउस होल्ड देते हैं टैक्स, हम इनकम टैक्स बोलते हैं, अगर कोई कंपनी या कोई फार्म टैक्स देता है हम उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। सो इनकम टैक्स हाउस होल्ड के लिए और कॉर्पोरेट टैक्स फार्म के लिए। ये लिंक्ड अप है इन 3 सेक्टर इकोनॉमी में, जहां पे गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और फार्म आते हैं। मैंने बोला गवर्नमेंट के साथ हाउस होल्ड का क्या लिंक्ड अप है और कैसे लिंक्ड अप है, कैसे दोनों के बीच सर्कुलेट हो रहा है मनी इनकम, और सिमिलरली गवर्नमेंट के साथ फार्म का कैसे लिंक्ड अप हो रहा है, गवर्नमेंट फार्म को पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, या फार्म टैक्स प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को। जैसे कि हाउस होल्ड टैक्स प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स जो होता है, और फार्म या कंपनी टैक्स प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो ये था हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे हाउस होल्ड एंड फार्म आते हैं, और 3 सेक्टर इकोनॉमी जहाँ पे तीनों चीज आते हैं, हाउस होल्ड, फार्म के साथ गवर्नमेंट भी आता है। सो नेक्स्ट हम जो बात किए थे पहले से कि फैक्टर ऑफ पेमेंट और फैक्टर ऑफ पेमेंट और फैक्टर ऑफ इनकम, और एक था हमारा फैक्टर ऑफ जो ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस था मैंने बोल दिया शॉर्टली। यहाँ पे डेफिनेशन है कि फैक्टर इनकम क्या होता है, इट इज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेलिंग द सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन द केस ऑफ लेबर दिस मीन्स वेजेस व्हिच पेड टू द लेबर फॉर हिज वर्क। यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल में मेंशन हुआ है, मैंने जैसे बोला फैक्टर ऑफ इनकम में क्या होता है, फैक्टर ऑफ इनकम होता है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं और उसके बदले हमें कुछ
पैसा मिल रहा है, हमारे काम के बदले हमें कुछ पैसा मिलता है, हम उसको फैक्टर इनकम बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है कि सिर्फ लेबर का हम लेबर को वेजेस मिलता है। लेबर को कहीं कहीं पे भी काम करता है और उसके काम के बदले उसको वेजेस मिलता है। A worker is working in any organization or any institutions, and for his work he is getting paid, or he is getting salary, which is known as factor of income। और ये एग्जाम्पल है, कहीं पे कोई कोई कुछ काम कर रहा है और उसके बदले उसको अगर पैसा मिलता है। सिर्फ लेबर की बात नहीं है, रेंट, लैंड रेंट भी हो सकता है। लैंड के बदले अगर हम रेंट मिलता है वो भी फैक्टर इनकम में आएगा। कैपिटल के बदले अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी फैक्टर ऑफ इनकम में आएगा। ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, फार्म होता है, उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलता है उसके काम के लिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो प्रॉफिट के लिए वो अपना काम करता है, उसको भी हम फैक्टर ऑफ इनकम पे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ये था फैक्टर ऑफ इनकम। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर इनकम, जो कि मैंने बोला था कि फैक्टर ऑफ इनकम पे काम करके, मेहनत करके पैसा कमाना, और ट्रांसफर पे इनकम में यहाँ पे कुछ काम मेहनत नहीं होता है, इससे ही गवर्नमेंट किसी को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कराए। यहाँ पे डेफिनेशन में मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट आर नोन एज ट्रांसफर इनकम। और एक बात मैं आपको बोल देता हूं कि जो सब्सिडी होता है, सब्सिडी क्या होता है, अगर हम कहीं से भी बैंक से 1 लाख सपोज लाए, किसान 1 लाख लोन लाया बैंक से और गवर्नमेंट उसको 20,000 का सब्सिडी दिया, मीन्स होगा क्या, उसको पूरा 1 लाख पे नहीं करना है। 20,000 जो सब्सिडी मीन्स इट इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो 20,000 है सब्सिडी मिला मीन्स 80,000 उसको पे करना हो, ही हैज टू पे ओनली 80,000 टू द गवर्नमेंट और टू द बैंक। ये सब्सिडी होता है। सब्सिडी भी हमारा ट्रांसफर इनकम पे, ट्रांसफर ऑफ इनकम या ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में भी आता है। उसके साथ साथ जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम होता है, पेंशन स्कीम मिलना, पेंशन जो मिलता है वो भी हमारा ट्रांसफर ऑफ इनकम में आता है। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी एक ट्रांसफर ऑफ इनकम में आता है। ये सारा हमारा ट्रांसफर ऑफ इनकम में आता है। पर एक बात, रिमेंबर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रांसफर ऑफ इनकम, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक चीज यहाँ पे बोल देता हूँ, जो याद रखना कि ट्रांसफर ऑफ इनकम जो होता है वो कभी भी हमारा नेशनल इनकम पे कैलकुलेट नहीं होता है। तीनों मेथड में कैलकुलेट होगा, इनकम मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में और वैल्यू एडेड मेथड में। और एक चीज यहाँ से याद रखना, जो ट्रांसफर ऑफ इनकम वर्ड है यहाँ पे, ट्रांसफर इनकम का जो मनी वैल्यू या जो गवर्नमेंट पे करा वो कभी भी एक्सपेंडिचर पे नहीं जाएगा। यानी कि ट्रांसफर इनकम कभी भी हमारा नेशनल इनकम पे ऐड नहीं होगा। सो जो था डिटेल्स फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम पे, बस इतना ही हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। We can say easily that the first chapter basically consists mainly 2 factor, household and farm। हाउसहोल्ड और फार्म को लेके ही फर्स्ट चैप्टर पूरा एलाबोरेट है, बहुत छोटा सा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर हमारा। 2 चीज यहाँ पे याद रखोगे, हाउसहोल्ड ओनर है और फार्म एक साइड पे है। हाउसहोल्ड के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ सर्विस होता है और फार्म के लिए फैक्टर ऑफ पेमेंट होता है। यहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वी हैव टू क्लियरली एलाबोरेट द प्रोडक्शन फेज, द इनकम फेज, द एक्सपेंडिचर फेज, अपार्ट फ्रॉम दैट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन हाउस होल्ड टू फार्म। यहाँ पे 3 सेक्टर इकोनॉमी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड अप है, ओनली हाउस होल्ड टू फार्म में सर्कुलर फ्लो कैसे जनरेट होता है। ये टोटल हमारा फर्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर अपलोड करूँगा। आई विल अपलोड द सेकेंड चैप्टर as soon as possible। सो आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच।